Uh, well, a cat is knocking on the doors, almost there. और हर साल लगता है कि अगले साल तो हो ही जाएगा. बट आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक. एंड आई होप दैट प्रिपरेशन आपने साल भर जो मिलना था उसमें काफ़ी कुछ कर लिया होगा. टुडे वी आर हेयर टू टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस. आरसी हम पहले बात कर चुके हैं. द अर्लियर थ्री सेशंस that we conducted were specifically for reading comprehension exercises. Today it is about VA. By the way, this is my channel, the Wise Bard Company. You may subscribe to it. बहुत पढ़ाता तो नहीं हूँ यहाँ पे, but you've got a series of conversations with people who have been really successful coming from smaller cities. All right, you'll have some IS officers, you'll have kids from IIMs, you'll have people from the army background, and I truly believe that they should be your role models. So you may go through that. बाकी vocab का कुछ पढ़ा हुआ है, काम ही आ जाएगा. We have a few RC sessions as well. All right. For today, let's talk about two types of questions in VA. In 24, they had, sorry, in last year, that is 23. In 23, they had 24 questions. And 4 RCs, 4 questions each. So that was 16. And the remaining questions were from VA. Now, VA questions are regarding summary, parajumble, sentence completion, complete the sentence, and odd one out. Okay. Now, if you are really good at RC, fine. तो आप वहां पे 3 आरसी निपटा सकते हो. दैट विल मेक इट अराउंड 12 क्वेश्चंस. एंड मान के चलते हैं कि लगभग 8 से 10 सवाल हम वहां पे क्रैक कर ले जाएंगे. नाउ फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्शन, इवन इफ वी क्रैक से अनदर 3 to 4 क्वेश्चंस, वी आर थ्रू. मतलब वी आर थ्रू का मतलब है यार 95 प्लस परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं. मे बी अगर सारे सही हो गए तो वी आर सिटिंग ऑन 99. सो इंपॉर्टेंट पार्ट है. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट summary and sentence completion. For summary, just a few things to be taken care of. Number one, that in summary, maybe all the options are true. जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आरसी में क्या था ना कि आरसी में आपके पास जो ऑप्शंस थे उसमें से एक ही सही है, बाकी सारे गलत होंगे या आउट ऑफ स्कोप होंगे. समरी में चांसेस आर कि ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू, विच मींस सबकी बात पैसेज में थोड़ी बहुत हुई है. The best option will be the one that covers the maximum surface area. It may still not be complete, which means it may still not talk about all the points discussed in the paragraph, but वो just निकाल के उसकी देगा, kind of central idea निकाल के दे देगा. So please never ever answer your summary question just by reading option A. क्या यार ये तो बोला हुआ है. मे बी वो बोला हुआ है, बट द थिंग इज कि बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है. सबसे ज्यादा पैराग्राफ का एरिया कौन सा ऑप्शन कवर करता है? दैट इज योर समरी. प्लीज डू नॉट इंक्लूड एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन द ओरिजिनल पैराग्राफ. एग्जाम्पल्स समझाने के लिए दिया जाता है, समरी में इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, हाउ डू वी गो अबाउट इट? हाउ डू वी गो अबाउट इट? नंबर वन, यू हैव टू रीड इट. कैट बहुत ही सिंपल एग्जाम है इन द सेंस दैट इफ यू आर अ डिसेंट रीडर with a speed of say 200 words, 250 words per minute, and you can comprehend really well, and vocab is I mean it's kind of above average. It may not be superlative कि मेरे को सारे वर्ड्स पता है डिक्शनरी से पूछ लो, but हाँ, if you can figure out say 90% of the passage of whatever is written, you will get through. So बहुत पैनिक नहीं करना है. कोई वर्ड आ गया कि अरे यार ये तो मीनिंग नहीं पता हमको. Do not, please do not panic. There is almost a guarantee that there will be words जिनका मीनिंग हमें नहीं पता है. At least this happens to me. That you are going through and you're यार yes का मतलब क्या होगा. But in the when you look at it in kind of a totality, you can figure out author कहना क्या चाहता है. For summary, what I do is I'll share that with you. I read the paragraph that is given, okay, and I try to figure out the central idea कि मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे. Something that we do with reading comprehension as well. You have to know the central idea, title क्या देना है, कुछ कुछ वैसे ही हो जाता है. And then I also try to paraphrase it, which means मैं अपने शब्दों में I figure out, or rather I try to figure out कि बात किसकी हो रही है. Then you go to the options.
And as I said, maybe more than one of them might be true. I pick the one that covers the maximum area of the paragraph. ये तो समरी का सिंपल अप्रोच है. एंड आई सजेस्ट दैट प्लीज गो फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड देन प्लीज गो फॉर समरी एज वेल, क्योंकि समरी हो जाता है. कैट का समरी आप देखोगे वो आपसे हो जाएगा, बिकॉज वो थोड़ा बहुत उसका जो अप्रोच है वो काइंड ऑफ, इन माई केस मैं सेंट्रल आइडिया वाले से टैली कर लेता हूं. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कंप्लीट द पैराग्राफ. ओके, इसमें देयर इज अ वैरायटी. व्हाट दे डू इज मे बी दे कैंसल आउट द फर्स्ट सेंटेंस और दे कैंसल आउट द लास्ट सेंटेंस. पहला या लास्ट सेंटेंस उन्होंने स्किप कर दिया. प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली इन सेंटेंस कंप्लीशन एंड इन ऑड वन आउट. ऑड वन आउट का पंगा क्या है ना, इट सीम्स लाइक पैराजम्बल क्वेश्चन बट इट इज नॉट. It is an odd one out. So please make sure you read the instructions very, very, very clearly. Coming back to what we're talking about, sentence completion. Last year, थोड़ा और हट के दिया था. What they did was, they simply gave us a sentence, all right, as an option, and paragraph में they left 4 blanks. And they asked us, ये वाला sentence इन 4 में कहाँ fit होगा? A kind of exercise that we call a closed test. All right, ब्लैंक भर दिया है, इनमें से कहां ये सेंटेंस हमारा फिट इन होगा. अगेन द अप्रोच रिमेन्स वेरी सिंपल. यू रीड, यू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू फिगर आउट कि इसका स्टार्ट कहां से होगा. एलिमिनेशन यहां काम करता है, बिकॉज अगर वो सेंटेंस की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन लेफ्ट आउट, देन यू कैन फिगर आउट कि पैरा शुरू कहां से हुआ होगा. इफ दे आस्क अस कि लास्ट सेंटेंस हैज बीन लेफ्ट आउट, फिगर आउट ये एंड कहां पे होगा. एंड इफ यू रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, यू कैन इजिली एलिमिनेट. एक ही बचेगा, साफ है. तो सेंटेंस कंप्लीशन इज सुपर कूल, समरी इज सुपर कूल. पैराजम्बल की बात अगले सेशन में करेंगे. थोड़ा डाइसी रहता है, हालांकि पैराजम्बल से आप अगर पुराने कैट के उठा के देखोगे ना, बहुत सिंपल आते हैं. हम डर ज्यादा गए हैं उससे. ये टीटा है, यू हैव टू टाइप इन द आंसर, एंड लोग कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार दे. अरे थोड़ा लॉजिकल अप्रोच करेंगे ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हुआ, टाइम तो दे रहे हैं ना उसको. सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, लेट अस मेक श्योर कि हम उसको लॉजिकली अप्रोच करते हैं. बट पैराजम्बल फिर कभी. आज लेट्स गो फॉर sentence completion and summary. So what we are going to do now is, I'll be putting some questions out here, 10 of them, okay, one by one, and I will expect you to give the answers. और फिर हम उसको देखते हैं how we can kind of eliminate and get the real, correct, true answers for these. So it's super slow today. इसको भी बारिश का वो लग गया है. All right. So, as I said, directions are very, very, very important to read. बेटा बिना डायरेक्शन पढ़े ना प्लीज कोई सवाल सॉल्व मत करना, खासतौर से बीए में. एंड आरसी में भी मैंने पहले बात कर चुका हूं कि अगर सवाल नहीं समझ आ रहा है, प्लीज रीड इट अगेन. देयर इज नो शेम इन रीडिंग द क्वेश्चन अगेन, बिकॉज अल्टीमेटली एक्यूरेसी मैटर्स. हमको 10-12 सवाल करने हैं, सही सही उतने कर लेंगे. एटलीस्ट द कट ऑफ एंड द 95 प्लस, इनका हेडेक हमारे पास नहीं है. और अगर मतलब विद 12-13 करेक्ट, यू आर सिटिंग ऑन 95 टू 99 के बीच में कहीं हम आ जाते हैं, विद अ वेरी गुड डे, यू नेवर नो. ऑलराइट. The questions contain a paragraph, each from which the first sentence has been deleted. So now it is very, very, very clear. Instructions कह रहा है कि क्या मिसिंग है? The first sentence has been deleted. All right. From the given options, choose the one that completes the paragraph most logically and coherently. Mark the appropriate option. Basically, हमारा paragraph start कहां से होगा? Okay, so I'll just leave it to you. Maybe you take 2-3 minutes, we solve, and then we discuss. You can put your answers in the chat box once you're done.
All right, I see some answers coming in. I repeat, they're asking for the first sentence. All right, fine, cool. You have answers from Rini, Sumit, Sanjana, Prasad, Lisa, Prerna, Pinky, Shraddha, Yash. यार पार्टिसिपेट कर रहे हो तुम लोग, दैट्स सुपर कूल यार. ऑल राइट, लवी, लोहिता, वंशिका. All right, all right, all right, all right. Cool, cool. Thanks for answering. That keeps me going. Uh, we most of the options are 2 and 4. थोड़ा जनता डिवाइडेड है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है. द क्वेश्चन वाज पहला हमने वहां पे सेंटेंस मिस किया है. ऑलराइट, नाउ we have had another terrorist attack. Happily, this time the bomb did not explode. There were no deaths and were injuries were relatively minor, but fear levels are not. Although few people are going to stop using public transport, we all know we have to carry on. Although there are few of us now who are not aware of the lottery of the threat. We just hope that this is one without our name on the ticket. हमारा नाम ना लिखा हो भाई इस बॉम्ब पे. Not that we wish random death and destruction on anyone else, but it is hard not to thank Providence. Providence, luck, sheer luck. कि भैया बच गए. Providence, when such violence is not visited on your own house. कि यार किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए. Now, let us let us try to understand कि यार कुछ हो चुका है. All right, a bomb has gone off and people are kind of scared or under threat, whatever it is. Meanwhile, nature, or indeed the same Providence, has been fighting back to as the worst storm ever known shattered the Caribbean. We have no discussion regarding Caribbean, and plus, meanwhile, which means it cannot be the first one. Agar hoga to towards the end aega. I think most of us eliminated in the first go. The summer holidays are over and it is business as usual, although Parliament is in recess for the party conference circus until October 9. Again, this is not with the first reading, it is not kind of fitting into our scheme of things. But let's hold it. You never know. 3, Now, as I said will be normally the last line of a paragraph, not the first one. As I said, it's hard not to thank Providence. You have talked about the Providence part. So obviously, last sentence nahi chahiye humko. Eliminated. There is a sort of balance to the negative forces of humankind, where nature shows her real power, but at the same time, as usual, it is the poorest who have suffered the most. Now, is there any discussion about nature out here? The problem is that कोई relation fit नहीं हो रहा है यहाँ पे. Negative forces of humankind when nature shows her real power. यहाँ पे तो बॉम्ब फटा है. नेचर क्या है तो मैन मेड calamity है. This is gone. Answer is to the summer. Now let's read it. The summer holidays are over and it's business as usual. Although Parliament is in recess for the party conference circus until October 9. We have had another terrorist attack. Happily, this time the bomb did not explode. We have had. All right. So congratulations to everybody who answered, and terrific. Uh, uh, the yes, yes, you can call it level 1. But CAT का क्या है ना, that if you're a good reader, it is all level 1. ओके, थोड़ा बहुत बच्चे का दिमाग चलता हो, थोड़ी बहुत उसको इंग्लिश आती हो, पेशेंस रखे, पैनिक ना करे, रिमेन्स फोकस. इट इज, आप ऐसे देखो ना बेटा, यू हैव टू कंप्लीट ओनली 55 to 60% ऑफ द पेपर ना, तो इतना लोड नहीं है वहां पे. ओके, बट यस, हाँ, थिंग्स कैन बी टफर एंड दैट इज व्हेन द चॉइस कम्स इन कि यार कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा छोड़ देना है. मेन गेम जो कैट का स्ट्रेटजी का है ना कि यार ये सवाल करेंगे, वो वाला छोड़ देंगे, बिकॉज टाइम लिमिटेड है. सारे सवाल हम नहीं कर सकते. अगर आप कैट का पेपर बिना टाइम लिमिटेशन के लगाएंगे ना, चांसेस आर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. फाइन, बट प्रॉब्लम क्या है, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लीव विद टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व करना होता है, तो यू गॉट टू पिक योर क्वेश्चंस, यार कौन सा करें कौन सा छोड़ दें. ऑल राइट, वी मूव टू द नेक्स्ट वन. समथिंग हैपेंड, सॉरी.
आई जस्ट फिगर इट आउट. मशीन्स आर नेवर अंडर कंट्रोल. एआई, बिना एआई के ही भाग रहा है ये. नंबर टू. अगेन आई लीव इट टू यू. या, टाइम इज द विलन. Please share your answers as soon as you're done. Okay, we have answers coming in. Super cool. All right. Uh, अनुष्का, प्रकृति, लीजा, रिनी, रुष्ना, प्रसाद, प्रबलीन, लवी, खुशी. ऑल राइट यश. ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. सो अगेन दिस टाइम अगेन जो दो सबसे कॉमन आंसर्स हैं, अपेर्णा कम्स इन ऑल्सो विद द आंसर. दे आर 1 and 4. बेटा एक बार फिर से देखो, व्हाट आर दे आस्किंग. पहला सेंटेंस कौन सा है, ना कि आखिरी वाला. पहला सेंटेंस विल बी समथिंग दैट इज बिफोर दिस पैराग्राफ, नॉट आफ्टर. ओके, वंशिका आल्सो कम्स इन द आंसर. अब पढ़ते हैं हम लोग. एज सच, individuals might lose years of employment in between court proceedings if they are not allowed to work during the appeal period. अपील पीरियड है, उसके बीच में अगर काम नहीं करने देंगे उनको, तो फिर वो बहुत सारे उनके वर्किंग ईयर्स लूज हो जाते हैं. वी हैव गॉट संजना विद आंसर. ऑल राइट. This, of course, is not a problem that the lawmakers are likely to face. Since all citizens are equal before the law, it can be argued that the right to appeal against a conviction must be extended to parliamentarians as well. भाई उनको भी ये हक मिलना चाहिए कि अपने खिलाफ जो उनके केसेस हैं उस पे उनके खिलाफ अपील करें. If, but it is one thing to be fair, it is quite another for the country to be ruled by criminals. If they must remain in their seats while they appeal against their convictions, parliamentarians should at least be stripped of their decision making powers. बोलता है देखो, अगर केस है भाई तो कम से कम काम उनको करने दो, बट डिसीजन मेकिंग पावर्स उनसे हम उस टाइम पीरियड के लिए ले लेते हैं जब तक उनके कन्विक्शंस का जो कहते हैं जो केस रिजल्ट नहीं आता है. ऑल राइट, नाउ बेटा जस्ट लुक एट दिस वर्ड एज सच. दिस टर्म एज सच. Individuals might lose years of employment in between court proceedings if they are not allowed to work during the appeal period. वो कह रहा है यार, इस हिसाब से ना लोग अपना वर्किंग ईयर लूज कर जाते हैं. ऑल राइट, तो ऑब्वियसली इसके पहले कुछ ऐसी बात हुई होगी यहां पे यही बताया जा रहा है कि होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसके चलते वर्क ईयर्स लूज करते हैं लोग. ना बेटा लिसन, it is true that every citizen of India has a right to appeal against a guilty verdict. Okay, fine. Now, can we relate this with this? As such, individuals might lose years. ये तो बोल रहा है has the right. Can be related with
दिस आई डोंट थिंक सो, दिस इज गॉन बेटा, मैक्सिमम आंसर वन आए थे, चले गए. India's parliament at present has the highest number of politicians facing criminal charges since 2004. Again, can we relate this with as such individuals might lose? Nope. थ्री, गिवन द ग्लेशियल पेस, ग्लेशियल अनफ्रेंडली पेस, बहुत धीरे धीरे काम करता है जुडिशरी यार, ठीक है. At which the judicial system is in India functions, it is not uncommon for years to pass before dates for appeal hearing are set. इतना टाइम लगाते हैं, इसके चलते individuals might lose years of employment. Then they talk about द अदर थिंग, पार्लियामेंटेरियंस को भी राइट मिलना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनसे डिसीजन मेकिंग पावर्स ले लेने चाहिए. फोर्थ पे भी आते हैं. A number of legislators were told to give up their seats after the Supreme Court ruled in 2013 that a lawmaker would automatically be disqualified upon being convicted. बेटा ये तो आएगा तो यहां पे आता, एंड में आता. It cannot be the first one. I think when you are solving the questions, बेटा जो जिन्होंने 4 आंसर किया है, all right, people who are answering 4, I think आप इंस्ट्रक्शंस भूल जाते हैं. सेंटेंस पैरा कंप्लीशन डज नॉट मीन कि सिर्फ आखिरी वाला सेंटेंस मिसिंग है, चांसेस है ऊपर का मिसिंग है, बीच में से कुछ मिसिंग है, हमें तो उसको कंप्लीट करना है ना. ऑलराइट, डोंट लूज फोकस व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. रिकॉल कि यार इन्होंने पूछा क्या हमसे, पहला पूछा, बीच में पूछा, लास्ट में पूछा. अभी हमने क्या किया, हमारे मन में हमेशा चलता है कंप्लीट माने लास्ट में होगा, अरे नहीं पहला भी हटा दिया ना उन्होंने, गेट द फर्स्ट वन. ऑलराइट, आई होप थर्ड वन में अपन को आंसर सही मिलेगा. हर्षिता इज द वन हु गेव 3. ओके, यश ने 3 बोला है. बाकी बेटा मेजॉरिटी 1 और 4 पे थे, बीच में कुछ लोग बोला नहीं हम थोड़ा सा वैरायटी लाएंगे, हम 3 करेंगे वहां पे. 2 करेंगे, सॉरी. चलिए थर्ड वन, ओवर टू यू. बी केयरफुल. दे आर आस्किंग फॉर द फर्स्ट सेंटेंस, नॉट द लास्ट. Okay, we have the first answer come up from Aishwarya. All right, we have प्रेरणा, यश, प्रकृति, लेजा. ओहो, लगता है सीख गए गुरु. चलिए. और अनुष्का, संजना, समित, प्रकृति, रुशदा, दिव्या, पीयूष, श्रद्धा. आई थिंक स्मार्ट लर्नर्स यार हैं? तुमको सही बंदा नहीं लगता सिखाने वाला है. आदित्य क्या बात करता है यार वन. ऑल राइट, चलो जी, लेट्स सी. इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ स्टार्ट्स विद इज इट. इट माने प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ word that is used in place of a noun or another pronoun. So which means it के लिए, it जिसके लिए यूज किया गया है, हमको वो वर्ड ढूंढना पड़ेगा. राइट वंशिका एंड लावी? ऑल राइट, वी गो विद इट. It is considered the most significant among the many cultural contributions of the Sumerians and the greatest among those of the Sumerian city of Uruk, which advanced the writing of cuneiform c 3200 BCE. Okay, the name comes from the Latin word cuneus for wedge. Wedge वो जैसे कुल्हाड़ी होता है ना, तिकोना टाइप का, वो वाला wedge. Owing to the wedge-shaped style of writing in cuneiform, a carefully cut writing implement known as a stylus, something like this, जो मेरे हाथ में है,
is pressed into soft clay to produce wedge-like impressions that represent word signs, that is pictographs, and later phonograms or word concepts closer to a modern day understanding of a word. All of the great Mesopotamian civilizations used cuneiform. The Sumerians, पढ़ पाए बेबीलोनियंस, जितना पढ़ पाए उतना पढ़ ले, जो छोड़ना है छोड़ सकते हैं, and others, until it was abandoned in favor of the alphabetic script at some point after 100 BCE. All right, now the first one. The great literary works of Mesopotamia, such as the famous epic of Gilgamesh, were all written in cuneiform. All right. अब यहाँ problem क्या है ना? They are talking about the great literary works, something that they have also talked about here. So obviously, पहले नहीं, इसको हटाते हैं. Two, one no longer had to struggle with the meaning of a pictograph. They have spoken about the pictograph, and then they're talking about picto again. Eliminated. The earliest cuneiform tablets, known as proto-cuneiform, were pictorial, as the subjects they addressed were more concrete and visible, but developed in complexity as the subject matter became more intangible. कहीं भी ये इट के लिए नहीं suitable है. So I think people will already start celebrating who marked 4 as this answer. Cuneiform is a system of writing. Introduction हुआ है यहाँ पे. Cuneiform is a system of writing first developed by the ancient Sumerians of Mesopotamia, 3500 3000 BCE. It is considered. What is considered? The system. Cuneiform as a system is considered the most significant one. So, but the answer for this one is 4. And as I said, this time majority of the people answered correctly. So, सीख तो जल्दी गए. All right, let's go for one more. Instructions. Just a moment. The questions contain a paragraph each from which the last sentence. So अभी आप संभले ही थे कि यार फर्स्ट है, अब वो लास्ट पूछ रहा है. बेटा बी केयरफुल. आप पढ़ लो, देन मूव इट. All right, we have first answer coming from Sanjana. Okay. Okay, sorry. I think this is much better now. All right. Okay, we have answers coming from Shraddha, Khushi, Anushka, Prableen, Prakriti, Lisa, Labi, Sumit. Okay, बढ़िया. 4 5 Shraddha says 5. Sumit says 4. Piyush, Yash, Rushda. All right. प्रेरणा, ठीक है बेटा, चलो देखते हैं भाई. They were asking for the last sentence this time, not the first one. और एक कैट का सवाल है. तो अब आप देखो, इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं जो आपको पता ना हो. यश, व्हेन यू टॉक अबाउट द लेवल 1, बेटा मतलब क्या ही लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, राइट? सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं यार कि बात क्या कर रहा है, आगे कहां फिनिश करेगा. आई एम समटाइम्स अटैक्ड फॉर इंपोजिंग रूल्स. नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ. वो कह रहा है जो भी है कि यार देखो, कुछ भी इससे बड़ा तो झूठ हो नहीं सकता कि मैं जो है रूल्स इंपोज करता हूं या करती हूं, व्हाटएवर. All I do is report on how consumers react to different stimuli. I may say to a copywriter,
Research shows that commercials with celebrities are below average in persuading people to buy products. Are you sure you want to use a celebrity? Call that a rule? Or I may say to an art director, research suggests that if you set the copy in black type on a white background, more people will read it than if you set it in white type on a black background. Tick. All right. Guidance based on applied research can hardly qualify as rules. The person concerned is not worried about her statement as such. वो ओवरऑल बोलना चाह रहा है या बोलना चाह रही है कि मैं जो कहती हूं या कहता हूं वो एज सच कोई रूल नहीं है जो मेरे पे आपने इल्जाम थोपा है कि मैं अपने रूल्स वहां पे इंपोज कर रहा हूं. ऑल राइट. Guidance based on applied research can hardly qualify as rules. Okay, I may say this. She's not very forceful about this as such. Okay, I may say this. Eliminated. Thus, all my so-called rules are rooted in applied. Again, they are playing with the same emotion कि हम research word के चक्कर में फंस जाएं और आंसर मार्क कर दें. Assertion perhaps, but scarcely a rule. यार rule का इल्जाम मत दो. Assertion है. Rule हम नहीं बताते. Let's hold it. Such principles are unavoidable if one wants to be systematic about consumer behavior. Again, the paragraph is not about consumer behavior. She's just giving an example. All right. Chala gaya bhai. Fundamentally, it is about consumer behavior, not about celebrities. Again, she was just giving example about celebrities and consumer behavior. Beta, ye bhi chale gaya. Getting back, answer is 3, a suggestion perhaps, but scarcely a rule. Yes, that's why 4, 5 eliminated. Beta, kisi ka answer 3 tha? Be honest. Anybody who answered as 3? Shraddha said 3. All right, cool. Super cool, beta. Now you see, being alert and understanding the theme of what is written is the main game, beta. That's it. अपन को ना थीम समझना पड़ता है, सेंट्रल आइडिया पकड़ना पड़ता है, किस विषय पे बात हो रही है, इमोशन क्या है, ये ज्यादा. हाँ, यश 2 था, थोड़े दूर रह गया यार, नीचे आया 3 होता. चलिए, बहुत करीब थे आप. एज यू वांट टू. चलिए बेटा. ऑल राइट. नंबर 5. Number 5, again, we are going for the last one, not the first one. Whenever confused, put them in the place ना, उसको place पे रख के पढ़ लेते हैं पूरा. डाउट क्लियर होता थोड़ा सा. ठीक है. एनीवे बेटा, यू गॉट नंबर 5. All right, with the first answer coming from Rishabh, Prasad, Shravani. Okay, we have Aishwarya and Prakuti and Lisa and Anushka. Tisha, Sumit. Super cool यार. You guys are responding, which means आप function कर रहे हैं. बढ़िया. चलिए, Sunday evening को वो भी. Let us read it. Let us read it.
In a remote Zambian village, a 9-year-old girl is accused of being a witch and given a stark choice. Choices क्या हैं? बहुत ही dark choices हैं. क्या क्या? To accept her supernatural branding and live a tethered life as a sorceress, or to cut her ties with the local tradition and be transformed into a goat that may be killed and eaten for supper. मतलब बचने की उम्मीद कोई नहीं है, हम दोनों तरफ से आपको खत्म ही कर देंगे. Thus begins this bewilderingly strange yet terrifically superfooted feature debut from writer director Rangano Nayoni. ये एक्चुअली मूवी का प्लॉट बता रहा है. Born in Zambia and part raised in Wales, Naomi first made international waves with such award-winning shorts as Monsa the Great 2011 and Listen 2014. All right. Now, this satirical parable of magic and superstition confirms her promise as a filmmaker of fiercely independent vision. Technically, we see no point कि इसको eliminate कैसे किया जाए. तो अभी इसको hold करते हैं बेटा. Let's not mark it. Now, this tale of cannibalism will fail to conform to accepted standards of cinema. वहां उसकी तारीफ हो रही है भाई, जो डायरेक्टर राइटर है, rather than कि ये पिक्चर जो है वो फ्लॉप होने वाली है. Now, this great short feature will throw Naomi into the arms of stardom. बेटा arms of stardom में तो stardom तो पहले से ही है, because फर्स्ट मेड इंटरनेशनल वेव्स, तो वो तो ऋतिक रोशन बन चुकी थी ना पहले ही. कहो ना प्यार है, आपने वो दिन देखे नहीं बेटा, हमने देखे, टिकट नहीं मिले थे. ऑलराइट, हाँ, तो शी वाज ऑलरेडी अ स्टार. नॉट एज इफ दिस विल मेक हर अ स्टार. ऑलराइट, एलिमिनेटेड. नाउ ओनली थ्रू गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन कैन देयर बी एनी चांस फॉर द फिल्म टू बी रिलीज. कहीं भी टोन ऐसा नहीं कि पिक्चर हमारी फंसी हुई है. टोन यह है कि पिक्चर बनाई बस तैयार. ठीक, कुल मिला के let's go to one. Now, this satirical parable of magic and superstition, बिल्कुल टैली कर रहा है, confirms her promise as a filmmaker of fiercely independent vision. पहले भी उसने अच्छा काम किया था और अब ये पक्का हो गया कि she is super. So answer is one. I think some of us did answer. यहाँ पे वंशिका का देख रहा हूं आंसर वन है. और कोई आंसर वन था बेटा? Anybody who answered one? Yes, yes. Okay, Shraddha was there, Rishabh was there, Prasad was there, Shavni was there. क्या बात है भाई, बड़े अच्छे बच्चे हो यार फिर तो. All right. So this was about sentence completion. Fine. Now, एक और number 6 for you. Same sentence completion. Then we will change the types and move on to summary. चलो बेटा, number 6. Get going. Okay, the first answer come in, that is from Rishabh. प्रसाद, तिशा, श्रावणी, खुशी. ओके, खुशी ने मुझे चॉइस दिया है कि सर देखो 4 या 1 है, अब ले लो जिसमें से लेना है आपको. लीजा, अनुष्का. सेम विद जागृति. जागृति says is this 4 or 2? Pick, take your pick. Sumit 4 and 3. All right. श्रद्धा, संजना, अंकित, सुमित, हर्षिता, लावी. चलिए बेटा, वेल ट्राइड, बढ़िया. अब ये मोर आंसर्स कमिंग ना. अरे बाप रे, जोश में आ गया यार. दिया, पीयूष, अनन्या. थैंक्स बेटा. चलो. Being Hayao Miyazaki's Spirited Away for the third time, 3 बार. यह पिक्चर बड़ी फुर्सत में बनना है. I was struck, sorry, by a quality between generosity and love.
ऑन अर्लियर व्यूइंग्स आई वॉज कॉट अप बाय द बाउंडलेस इमेजिनेशन ऑफ द स्टोरी। अभी तक भाई साहब स्टोरी में जो है वो खोए हुए थे। दिस टाइम आई बिगैन टू फोकस ऑन द एलिमेंट्स इन द पिक्चर दैट डिडंट नीड टू बी देयर। अब ये टेक्निकलिटीज पे आ रहा है। एनिमेशन इज अ पेन्स टेकिंग प्रोसेस एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू सिंप्लीफाई इट्स विजुअल एलिमेंट्स। इतना मेहनत का काम है, लोग कहते हैं ठीक है जितने से काम चल सकता है उतना ही कर लेते हैं। Miyazaki, in contrast, offers complexity. His backgrounds are rich in detail. His canvas embraces space liberally, sorry, and it is all drawn with meticulous attention. Detail में जाके जो है वो काम करता है. All right, चलिए. But he personally draws thousands. बेटा contrast but he personally, तो but तो यहाँ पे fit होता नहीं है. तो we remove one. Movies about specific characters in a detailed world are spellbinding because they make no attempt to cater to us. They are defiantly, triumphantly themselves. Is it the tone of the paragraph? Talk about cinema that is defiant? No, it's not. Get going. Despite having a rich plot with developed characters, Spirited Away was not made the script. And in fact, Miyazaki's films do not have any scripts at all. हम उसके एनिमेशन की बात कर रहे हैं, by the way. हम ये नहीं कर रहे इसके बंदे स्क्रिप्ट डेविड धवन टाइप स्क्रिप्ट नहीं होता है. We may not pay much attention to the corners of the frame, but we know they are there and they reinforce the remarkable precision of this, of his fantasy world. So, cool cat answer 4 hai. And I believe yahan pe most of you did answer option 4 as your final answer. So I think this was super cool. हाँ भाई, Ashwarya is asking, please tell me about ZAT and MAT exam pattern. बेटा अगर आप कैट का तैयारी कर रहे हो ना, तो ZAT में एक एडिशनल चीज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. बट वो भी लॉजिकल होता है. तो इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश गुड, मतलब वेल, चांसेस आर कि आपको डीएम में इतना दिक्कत नहीं आएगा. व्हाट यू कैन डू इज यू गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर दैट एंड जस्ट हैव अ लुक एट द डिसीजन मेकिंग पार्ट. बाकी सब वही है. हाँ, द डिफिकल्टी लेवल इज स्लाइटली हायर देन कैट. ये जैट का थोड़ा ट्रेडिशनली रहा है, थोड़ा पेपर कठिन रहता मुकाबले कैट के. मैट आप कैट कर रहे हो, मैट आई थिंक अगर बहुत ज्यादा डिविएशन फ्रॉम द प्रिपरेशन आपको नहीं करना पड़ेगा. मे बी मॉक्स देने पड़ेंगे बिकॉज थोड़ा स्ट्रैटेजी आगे पीछे करना पड़ता है. बाकी एज सच द सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर वो बहुत डिफरेंट नहीं होता है. ठीक है, ऑल राइट. स्नैप इज वेरी गुड. हाँ, अब तो पता नहीं कितने घंटे का इस बार दे रहे हैं. 1 घंटे का आता था जुब जुब. स्नैप इज गुड यार, सेमाइसिस नाइस. ऑल राइट, हाँ जी. Shraddha says, but where the we come from, the passage includes I from start to end, so I eliminated for. Okay, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं. ये बोल रहा है मैंने क्या किया. ठीक है, मैंने तीसरी बार पिक्चर देखी, फिर मैं डिटेल. फाइनली वो जनरलाइज करेगा ना कि हम लोग शायद बहुत टेंशन न मत दें किसी चीज को, लेकिन हमें पता है कि वो वहां पे है. सो बेटा प्रोनाउन का ठीक है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड पैसेज फ्लो क्या कर रहा है, उसका थीम कहां से कहां जा रहा है. सो वेल कॉट, बट देन अगेन आई होप आई गॉट थ्रू माई पॉइंट की बात यहां पे हो रही है. पहले वो स्पेसिफिकली बता रहा है मैंने क्या किया, फिर वो जनरलाइज्ड आउटपुट उसका दे रहा है कि हमें ये लगता है, हमें वो लगता है. ठीक है बेटा, चलिए. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज समरी. ऑल राइट. Each of the following questions is followed by 4 summaries. Choose option that best captures the essence of the text and mark it as your answer. कुछ कुछ सेंट्रल आइडिया पे फोकस करना है. ठीक है, चलिए बेटा. Here is the summary and here are the options. Please get going. ये सेंटेंस कंप्लीशन नहीं है. ऑलराइट, समरी है. क्वेश्चन बदल गया है. ऑलराइट, वी हैव द फर्स्ट आंसर कमिंग फ्रॉम हर्षिता. क्या बात है.
सुमित, ओके। ऑलराइट, वेरी गुड। अंकित, अनुष्का, शालिनी, माहिधर, जागृति, प्रकृति। अच्छा, समरी में तेज है भाई, जल्दी नहीं आंसर आ रहे हैं आपके। श्रद्धा, ऑलराइट। संजना, लीजा, खुशी। ऑलराइट, बड़ा, चलो भाई देखते हैं यार, बड़े जल्दी जल्दी आंसर दे दिया आपने। By 1920, psychoanalytic theory was widely known around the world, but it continued to meet with considerable resistance in psychology. Most psychologists, contemptuously, with hatred kind of, viewed psychoanalytic theory as unscientific speculation, कि आप ऐसे ना अंदाजा लगा रहे हो बिना साइंटिफिक लॉजिक के उसके, that would eventually fade away, जो जाके अपने आप खत्म ही हो जाएगा. However, they turned out to be wrong. Psychoanalytic ideas steadily gained credence, उन पे लोग बिलीव करने लगे, in the culture at large, influencing thoughts in medicine, the arts, and literature. According to Hornstein, by the 1940s, psychoanalysis was becoming so popular that it threatened to eclipse psychology entirely. कि psychology as a subject उड़ा देंगे यार हम लोग, इतना पॉपुलर हो गए थे. All right, number one, इन स्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड एंड अनसाइंटिफिक रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल साइकोलॉजी, बेटा उनका तो साइंटिफिक था, उनका तो क्लेम था कि तुम्हारा जो वर्किंग है वो अनसाइंटिफिक है. ऑलराइट, मैनेज टू फाइंड इट्स ग्राउंड. बेटा इसी चीज पे ना वी कैन एलिमिनेट दिस वन. टू, in spite of widespread criticism and resistance from traditional psychologists, psychoanalysis managed to establish itself. ये अभी तक बेस्ट ऑप्शन इन दो में से होती है. इन स्पाइट ऑफ इनिशियल स्केप्टिसिज्म, डाउट्स एंड डिराइजन, criticism from traditional psychologists, psychoanalysis managed to influence all other subjects. बेटा हम कहाँ बात कर रहे हैं all other subjects की, एंड वैसे भी जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, चांसेस हैं वो हमारा आंसर नहीं होते हैं, तो इनको भी हटाते हैं भाई. For, in spite of initial criticism and derision from traditional psychologists, psychoanalysis successfully obliterated critics को थोड़े खत्म कर दिया, अपने को स्टैब्लिश कर दिया. क्रिटिक्स तो रहेंगे बेटा, जो लोग तुम्हें नहीं पसंद करते वो तो रहेंगे ना, ठीक है. आपने उनके रहते हुए भी अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा है. दिस इज ऑल्सो गॉन. आंसर इज टू, इन स्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलिसिस मैनेज टू स्टैब्लिश इटसेल्फ टू एन एक्सटेंट जहां पे वो साइकोलॉजी को ही थ्रेटन करने लगे थे. ऑल राइट, ऑल राइट. हाँ भाई, नंबर टू कौन कौन था? हाथ उठाएं, सर उठाएं, कदम उठाएं. पीपल हु आंसर्ड दिस वन करेक्टली. सबके रोने आंसू निकल रहे. सेंटेंस कंप्लीट कर रहे थे क्या? पहला आखिरी. बेटा दिस वाज अ समरी क्वेश्चन, आई टोल्ड यू. एनीबॉडी हु गॉट दिस वन राइट? ए अशर, क्या बात करती, कहां कंफ्यूजन है भाई? ऑब्लिटरेटेड, उड़ा दिया. क्या हिंदुस्तान में एक भी नहीं है इसने सही आंसर दिया इसका? चलो बेटा, पहला था वी काइंड ऑफ. चलो, वी काइंड ऑफ मतलब मेरा मिस्टेक भाई, अब क्या ही किया जाए. ऑल राइट. अरे मल्टीपल सब्जेक्ट्स का बात यहां, नाम क्या बेटा? ऋषभ. बेटा अपने पैराग्राफ में तो बात होना चाहिए ऑल अदर सब्जेक्ट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी. बेटा समरी है, जो पैराग्राफ में लिखा है उतनी ही बात करेंगे, बाहर की बात थोड़े कर देंगे. ठीक है, वी आर नॉट लिंकिंग इट टू एनीथिंग दैट इज एक्सटर्नल. ठीक है, सरफेस एरिया लॉजिक. ठीक, चल बड़ा. नेक्स्ट वन. लीव इट टू यू. गुड गोइंग. ऑल राइट, संजना इज द फर्स्ट वन.
Prakriti is the second. All right, with the same options. श्रद्धा, अनुष्का। ऑल राइट, आंसर सेम आ रहा है। पीयूष। पीयूष से 2 और 3 है, देख लो यार अपना अपना। ओके प्रसाद। सुमित सुपर कूल 2 और 4। यश इज 4। ओके चलो भाई। वी हैव ऐश्वर्या सिंह 3, शिवा, दिशा, लिजा, वैभवी, अंकित। चलो बड़ा शाबाश, वेल डन, वेल ट्राइड। लेट्स सी यार आंसर क्या है। हाँ, एक और किसी ने आंसर दिया है, हर्षिता ने दिया है, प्रेरणा ने दे दिया है। ठीक है बड़ा, चलो वेल डन। It's revealing to take a look at the animal kingdom and notice the relationship between creatures, eating patterns and their body types. कैसे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं वैसे उनकी body. At one end of the spectrum are animals that load up on large amounts of food at one meal, then go for days, weeks or even months without eating at all. Hibernate कर जाते हैं ना खा पी के, यार 3 महीने बाद खाएंगे यार। Bears are a prime example of this type of infrequent feeder. जम के खा के सो जाता है, 3 महीने बाद उठता है। They're what I call bingers. जो बिंज वॉच करते हैं ना अपन, रात को 8 घंटे का सीरीज देख डालते हैं, फिर कहते हैं कैट कैसे निकलेगा। They have huge body fat storage compartments to stockpile the fuel they'll need to carry them from one feeding to the next. अजगर। At the other end of the eating pattern spectrum are the frequent feeders. चरते रहते हैं, animals that eat almost constantly but in far less amounts. Horses, buffalo, elk. I call these grazers. Relatively speaking, they have very low body fat and lots of lean muscle. अब हॉर्स मोटा बहुत कम दिखेगा आपको, बियर दिखाई पड़ेगा उस तरह से। ओके, नाउ आप ये देखो, इन्होंने एनिमल्स हैं काफी सारे। एक्सट्रीम पे कौन कौन से हैं? एक है जो खा के सो जाता है, 3 महीने बाद उठता है। एक है जो सोता ही नहीं है, खाता ही रहता है। ऑलराइट, ये एक्सट्रीम हमारे स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम्स हैं बेसिकली। ऑलराइट, ठीक है। Binging habit in some animals help them store excessive fat, which in turn affects the overall body type adversely. कहीं भी ये नहीं बोला है कि भालू को दिक्कत हो रही है, वो खा के मस्त है, सो रहा है, फिर जागेगा फिर खाएगा। हटाते हैं जी। Bingers and frequent feeders are the two major types in terms of eating habits and body fat storage tendency in the animal world. But my problem here is extremes पे हैं, but are they the major ones? How do you, मतलब आरसी होता तो अपन फाइट मारते हैं कि सर इन्फर कर सकते हैं, ये लिखा है वो लिखा है। समरी है बेटा, समरी है, होल्ड करो इसको। Binging and frequent eating are the habits that make a difference in body fat content in animals. All right, अब ये देखिए आप, बॉडी फैट कंटेंट, बिंजिंग एंड फ्रीक्वेंट ईटिंग। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम अभी भी नंबर 2 से है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेजर टाइप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम टाइप्स। फर्क है दोस्त। 3 होल्ड करते हैं। 4, the binge eating habits of certain animals differ significantly from that of other animals that are frequent feeders. What about the fat part? कि भैया फैट का जो वो है वो कम है, ज्यादा है, इनकम्प्लीट। बेटा आई विल गो विद नंबर 3। बिंजिंग एंड फ्रीक्वेंट ईटिंग आर द हैबिट्स दैट मेक अ डिफरेंस इन बॉडी फैट कंटेंट इन एनिमल्स। ऑल राइट, मैं आखिरी के 2 देख पा रहा हूं, 3 देख पा रहा हूं, 4। ओके, वैभवी, प्रेरणा, खुशी, प्रीति। क्या बात है यार, 3 3 3 3 3। ऑल राइट, नो यश, इट विल नॉट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ अभी और करेंगे यार। कितना है? नंबर 8 है, कम से कम 2 करेंगे बॉस। ठीक, वेल डन गर्ल्स यार, गॉट इट राइट। 3 समझ में आया कैसे? बिकॉज रीडिंग है बेटा, सटल रीडिंग है थोड़ा सा। क्या वो पहाड़ों पे लिखा रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वही हो गया थोड़ा सा। बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी, मोस्ट ऑफ द पीपल डिड गेट द आंसर राइट। यस, ट्रैप था, बट वही भी ट्रैप में फंसी नहीं। चलिए बेटा, नंबर 9, अगेन वी कंटिन्यू विद समरी।
Here is the first one to answer. All right. श्रद्धा इज आंसर्ड। ऑल राइट, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यार। अनुष्का comes in with an answer. Lisa has given her answer. All right. शिवा, पीयूष, प्रकृति। ऑल राइट बेटा, चलो बढ़िया। लेट्स सी। Dim and distant echoes of the Cold War, West versus East, freedom loving peoples versus enslaved subjects of Iron Curtain tyrannies, etc. All this mid 20th century fame actually did Marx some good, having made him indelibly, जिसका निशान हट नहीं सकता, मिट नहीं सकता, historical without perhaps surprisingly totally demonizing his thought or discrediting his intellect. Any number of biographies, commentaries, philosophical critiques, and political polemics attempted to do him down, particularly from the early 50s through later decades as and well into the 80s, right up to the fall of the Berlin Wall in 1989. But counter movement had also swelled up in the 60s, and eventually it overtook the Stalinist terror, anti-communist, anti-Soviet, anti-Red China, anti-Marx bluster. कुल मिला के क्या हुआ कि उन्होंने क्रिटिसाइज तो बहुत किया, बट बाद में क्या हुआ, इन सबको पार करता हुआ जो मार्क्स का फंडा था वो स्टैब्लिश होके रहा, हटा नहीं। समथिंग जो अभी एक पहले हमने किया था, वो साइकोलॉजी वाला, किसी क्रिटिसाइज किया लेकिन सब कुछ होते हुए उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था। बेटा कुछ फ्लो ऑफ द पैसेज वही था। नंबर वन, Marxian ideology found support towards the second half of the 20th century, albeit the attempts at denunciation. I think इसको अपन रोक सकते हैं यहाँ पे। Marxism managed to gain support towards the mid 20th century, okay, despite vicious criticism and due to historical events. Better due to historical events, ये तो we can't kind of figure out historical event क्या है। ये जो events हैं इनको सबको उसने पीछे छोड़ के मार्क्स ने establish किया था, ये कुछ मतलब है। ऑल राइट, आई थिंक कंफ्यूजन हो गया जिन्होंने 2 मार्क किया है। मार्क्सियन आइडियोलॉजी रोज अगेंस्ट द टायरेड ऑफ, मतलब जो धुआंधार, जो बौछार हुई है, ऑफ फिलोसफिकल क्रिटिक्स, एंड मैनेज टू कम आउट ट्रायम्फेंट इन द एंटी सोवियत एंड एंटी कम्युनिस्ट नैरेटिव। इन एंटी सोवियत एंटी कम्युनिस्ट नैरेटिव नहीं है, उन उनसे आगे निकलने का बात कर रहा था। दिस इज ऑल्सो गॉन वेरी वेरी क्लियर कट। मार्क्सिज्म मैनेज टू विन, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। Okay. Marxism managed to win the intellectual battle thanks to the historical development. Again, historical developments, we are not talking about any of them right here. This is also gone. Beta, answer यहाँ पे one है. Who answered one? Who marked their answer at as one? बताओ. Aishwarya, how about the one? I hope beta you're getting the gist ना. अभी क्या हो रहा है, गलती हमसे क्यों हो रही है बता रहा हूं। गलती इसलिए हो रही है क्योंकि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज या एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ सोच ले रहे हो। नहीं करना है, जितना लिखा हुआ है बस उतना ही पिन पॉइंट करना है। यू डोंट हैव टू एक्सटेंड। यस, वैभवी बेटा हमेशा रहेगा, दो में आप फंसोगे। ट्राई टू फिगर आउट, देखिए होता क्या है ना, यू आर फोकसिंग ऑन द ऑप्शंस। बेटा ये तो पता करना कि वहां पे लिखा क्या हुआ है, बात क्या हुई है। विनेश स्टक, गो बैक टू द समरी कि यार बात क्या हुआ है। अब अपन ऑप्शन में भिड़े हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। हमेशा तुक्का रहेगा वो। गो बैक, फिगर आउट मेन बात क्या हुआ है। मेन बात था कि मार्क्स सबको पीछे छोड़ता हुआ स्टैब्लिश कर लेगा लेट मिड 20th सेंचुरी में, इतनी सी बात है। दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी। ऑल राइट, नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट विल बी नंबर 10। एंड बेटा आई होप एवरीवन गेट्स इट करेक्ट। चलो। हाँ यश, कूल। क्या क्या खाना बनाएगा यार।
मैगी, ओहो। चल कैट निकाल। सो दैट यू फाइंड समबडी हु कैन कुक। आई मीन पैसे दे पाओगे तो यूल फाइंड अ कुक, तो मैगी नहीं खाना पड़ेगा। Oh, wait, बेटा, दिस इज द लास्ट वन दैट वी हैव। ओके, सुमित हैज गिवन द आंसर। खुशी सेज मे बी फोर। बेटा ये ऑप्शन नहीं देंगे कैट वाले। मे बी फोर का। ऑलराइट, आंसर्स कमिंग इन। लीजा, प्रकृति, अंकित, पीयूष, यश, श्रद्धा। ऑल राइट। चलो, एटलीस्ट द पेस इज सिमिलर, सब लोग आंसर देते एक साथ ही है धुम धुम करके, इसका मतलब एटलीस्ट रीडिंग स्पीड में इतना फर्क नहीं है हमारे। पढ़ लेते हैं बेटा। When belief in the eternal, a supreme power, becomes impossible, and there is only the poor substitute of belief in believing, men seek their happiness in the joys of time. जब वहां से ध्यान हटता है सुप्रीम पावर से, तो लोग बस जो मौज मस्ती कर पा रहे हैं उसी पे फोकस कर पाते हैं। However, much they may try to bury it in the depths of their minds, they are well aware that these joys are both uncertain and brief. पता तो हमको सबको है, ये मौज मस्ती के दिन कुछ ही दिन है और फिर मौसम बदलेगा, उल्टा भी होता है। This has two results. On the one hand, there is the anxiety that one may be missing something, FOMO, or so that the mind flits nervously and greedily from one pleasure to another without finding rest and satisfaction in any. ऐसा तो नहीं कहीं कोई और कुछ पढ़ा रहा हो, वहां पे कुछ ज्यादा सीख जाएंगे, भागो 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 भागो, इतना यूट्यूब चैनल चल रहा है। ये एक प्रॉब्लम है हमारी। ऑन द अदर, the frustration of having always to pursue a future good in a tomorrow, कैट निकालना है, ये करना है, वो करना है, which never comes, आएगा by the way, आएगा यार। And in a world where everything must disintegrate gives men an attitude of what's the use anyhow, जब सब कुछ करके खत्म ही होना है तो करने का फायदा ही क्या है। ऑल राइट, दो फंडे हैं बेटा जो कवर करने थे अपने को। ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम पावर गिवन मीनिंग टू लाइफ ऑफ मैन, ओनली ओनली एक्सट्रीम, रुक जा भाई, ये तो कुछ अलग बन के आ गया। ऑलराइट, ओनली वाला पेन हटाते हैं। एब्सेंस ऑफ बिलीफ इन अ सुप्रीम पावर मेक्स मेन हेडोनिस्टिक, प्लेजर सीकिंग, बोला है मौज मस्ती करता है, एंग्शियस एंड डिस्पॉन्डेंट। बेटा होपलेस भी तो हो गया, आई थिंक यार ये सारा कवर कर रहा है, देख लेते हैं बेटा। आई थिंक द बेस्ट, द सोर्स ऑफ एंग्जाइटी एंड फेटलिज्म, फेटलिज्म इज बिलीफ इन फेट, कि भाई सब लिखा हुआ है पहले से, क्या ही होगा। इन मेन कैन बी ट्रेस बैक टू एब्सेंस ऑफ बिलीफ इन द इटर्नल, नो। फोर, man deep down realizes the futility of worldly pleasures irrespective of how he may act. बेटा ये आधा हिस्सा है, this is not the पूरा हिस्सा। All right, this is gone. Answer is to absence of belief in a supreme power makes men agnostic, anxious and despondent. All right, वैभवी रोज, दैट इज टफ बेटा, मतलब चैनल पे आके देखते हैं।
बाय द वे इसका पहले बात कर लेते हैं। तो दिशा आस व्हाई नॉट थ्री। बेटा ओके, देख लेते हैं। बेटा फेडरलिज्म था, डेस्टिनी का बात कर रहा है, तो डेस्टिनी माइट भी बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना, यहाँ पे केवल डिस्पोंडेंसी होपलेसनेस की बात किया है कि क्या ही फायदा ये सब करने का। दैट इज द इशू। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई वी कैन एलिमिनेट थ्री एंड स्टिक टू नंबर टू। ऑलराइट, बाय द वे 9335814181 is my phone number. My name is Sudeep Bajpayee. You can drop me a message. You can WhatsApp me on this for anything related to your exam prep. ठीक है। बेटा रोज पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, बट यू नेवर नो, इट मे हैपन अगर रिक्वायरमेंट इतनी सारी है। आई होप लर्निंग रहा होगा बेटा आज का। ठीक है, कोई खास चीज नहीं है। स्टे फोकस, स्टे डिसिप्लिन एंड डोंट पैनिक। हड़बड़ाना नहीं है कि अरे अरे दो ये तीन ये क्या है। कूल काम कंपोज्ड अप्रोच होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होता है बेटा। ठीक है। हाँ यश, हाँ प्लीज फॉलो मी। हाँ प्रवीण, थैंक यू। सुमित, एवरीडे क्लास एनी ऑप्शन? लेट्स थिंक ऑफ इट। मतलब अब सडनली बेटा हाँ या ना नहीं कर सकते। नो एब्सोल्यूट आंसर्स, एलिमिनेशन। चलिए